ओम शिवा फाउंडेशन ये स्टार्टिंग है, बच्चा अभी क्रॉल कर रहा है। जब वो तैरना सीख जाएगा तो भाग ही जाएगा, फिर तो कोई जरूरत ही नहीं। पर हाँ, ये एक स्टार्टिंग की फाउंडेशन है। इसका काम है लोगों को उनके बिजनेस के प्रति प्रोत्साहन देना। डर के आगे जीत है और आप कोशिश करिए, सफलता जरूर आपको मिलेगी। Jai Hind, Jai Bharat. This is Rida Khudus from 24 News, Haq Ki Awaaz. Come, let's see today's special report. Jai Hind, Jai Bharat. Welcome to 24 News, Haq Ki Awaaz. Varanasi, known as the cultural heart of Uttar Pradesh, is once again recognizing its musical tradition and artistic heritage. For centuries, the holy city of Baba Vishwanath, Banaras, has been the soul of music, literature, art, and culture. The sweetness of the melodies that resonate in its streets and the identity of the Banaras Gharana have left a distinct mark not only in the country but also abroad. To promote this historical and musical heritage, the Om Shiva Foundation has announced the launch of a grand singing talent program. This initiative aims to provide a new identity and a major platform to emerging artists who possess talent but lack opportunities to showcase their talent. The foundation believes that Banaras still holds countless artists whose voices can make a name for themselves nationwide. The detailed outline of the program was discussed in a meeting organized by the foundation. Officials stated that Varanasi has always been a hub of Indian classical music, and its cultural heritage serves as a source of inspiration for generations to come. Therefore, it is crucial to provide young talent with the right platform and guidance. The theme of the event, Rag-based film songs, will provide participants with the opportunity to showcase their singing in the beauty of Indian classical music. Participants between the ages of 16 and 40 will be eligible to participate. According to the organizers, artists who excel in the competition will receive attractive prizes of up to 2 lakh rupees. Participants will also have the opportunity to perform on a large stage, learn from experts, and take their talent to new heights. The foundation also stated that the event will be organized on a grand scale to ensure that as many artists as possible from Uttar Pradesh and surrounding districts can participate. The event will also feature numerous cultural performances and special musical events, ensuring a memorable experience for the audience. Registration for the competition will begin on May 20th and continue until July 10th. Interested participants can register by contacting mobile numbers given on the screen. At each stage, participants' voice, rhythm, presentation style, and stage management skills will be evaluated. Foundation officials stated that this event is dedicated to the memory of legendary singer Asha Bhosle and to the service of the disabled. They stated that Asha Bhosle's contribution to the music world will always be a source of inspiration for the new generation of artists. This event, starting from the sacred land of Varanasi, could become a medium to elevate Uttar Pradesh's new musical talents to the national level in the future. जय हिंद, जय भारत। मैं नकीर दानिश, आप देख रहे हैं 24 न्यूज हक की आवाज। हम मौजूद हैं वाराणसी, जो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र भी है, और ये वाराणसी गंगा जमनी तहजीब के लिए भी जाना जाता है। और यहाँ से जो है बहुत से जो है सिंगर बाहर निकले हैं, उन्होंने नाम कमाया है, देश का नाम कमाया है। उसी में जो है पंडित छन्नूलाल मिश्रा जी जैसे हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी जैसे, ऐसे न जाने कितने हीरे जो है बनारस में जो है देश को दिए हैं, और उन्होंने जो है देश का नाम जो है विदेशों में भी रोशन किया है। और उसी को लेके जो है बनारस में जो है ओम शिवा फाउंडेशन जो है एक प्लेटफॉर्म सिंगरों के लिए खोलने जा रहा है, तैयार कर रहा है। उसी में बात करते हैं, यहाँ जो पद अधिकारी जितने बैठे हैं फाउंडेशन से, उनसे बात करते हैं आखिर इस जो इवेंट ये करने जा रहे हैं उसमें आखिर ये क्या क्या करें। अपना परिचय बताएं। मेरा नाम सिद्धार्थ शर्मा है। मैं ओम शिवा फाउंडेशन का प्रारंभिक सदस्यों में से एक हूँ। जब ये संस्था शब्दों पे थी, उसकी पहली मीटिंग में शायद 2 ही आखिरी लोग बचे हैं, एक मैं और एक सर। जो पहली मीटिंग में हम 5-7 ये इतने बड़े संस्था की कल्पना की थी, तो मैं उतना प्रारंभिक सदस्यों में से एक हूँ।
तो ये जो आपकी फाउंडेशन है, तो ये आखिर कौन सा इवेंट बनारस में करने जा रही है? हमारी शिवा फाउंडेशन जो है वो शिवा सुरांजलि करके एक सिंगिंग कॉन्टेस्ट ला रही है। शायद ये अपने शहर का या किसी भी शहर का पहली संस्था ऐसी है जो हर साल ये प्रोग्राम करने के लिए कटिबद्ध है। अमूमन बहुत सारी संस्थाएं एक इवेंट या 2 इवेंट या 3 इवेंट करती हैं और अपने शहर के जो संगीत का टैलेंट है उसको 1 या 2 बार निखारने पे चाहे उब जाते हों, चाहे अपनी व्यवस्थाओं से वो पीछे हट जाते हों। लेकिन हमारी संस्था ने जैसा कि आज तय किया है कि हर साल कला, संगीत और सामाजिक सरोकार जितने भी पहलू हैं, हर साल कुछ न कुछ एक बड़ा इवेंट अपने शहर के लिए करने जा रहा है और पूर्वांचल को हम इसमें शामिल करेंगे और बनारस से सामाजिक संगीत और कला की आवाज को पूर्वांचल करते करते राज्य स्तर पर और देश स्तर पर फैलाने का काम करेंगे। तो ये जो आपका इवेंट होने जा रहा है, तो इसमें एज का जो है क्या बाउंडेशन रखा गया आपके? इसमें 16 वर्ष से 40 वर्ष तक के सभी प्रतिभागी भाग ले सकते हैं और 15 वर्ष एक मैच्योर अवस्था होती है, इसलिए हमने उसको 16 वर्ष से 40 वर्ष तक, संगीत सीखने की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन 16 से 40 वर्ष तक में व्यक्ति सीखने का सबसे प्रबल स्टेज में होता है, तो इसलिए हमने ये एज गैप रखा हुआ है, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही सार्थक है। और इस इवेंट में तकरीबन कितने जो है पार्टिसिपेंट आप लोग लेना चाहेंगे? हम लोग का टारगेट पूरा कम से कम 5000 पार्टिसिपेंट इसमें हों, जो कि पूर्वांचल से लेके हुए सबसे ज्यादा हम लोग स्कूल से शुरू कर रहे हैं। इसके बाद हम वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कॉलेज के बाद भी अपनी संगीत कला साधने में लगे हुए हैं। सामाजिक संस्था और 1 to 1 माउथ टू माउथ के माध्यम से हम उनके तक भी पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी तैयारी जो है सबसे अच्छी है स्कूल्स के बच्चों के लिए, उससे ज्यादा कॉलेज के बच्चों के लिए, उससे ज्यादा हायर एजुकेशन के लड़कों के लिए। तो जो भी आपके मीडिया के माध्यम से इन 3 कैटेगरी में लड़के देख रहे हैं या बच्चियां देख रही हैं, वो जरूर रजिस्ट्रेशन कराएं। मान लीजिए ये जो अभी इवेंट हो रहा है और जो कुछ बच्चे जो हैं संगीत सीखना भी चाहते हैं, तो क्या ये फाउंडेशन उनके लिए भी कुछ करेगी? अभी तक तो ऐसा तय नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से ये हमारी रूपरेखा बन रही है, आने वाले समय में जैसे हमने कहा कि 3 सेक्टर पे हम बहुत ज्यादा, जैसे हमारे संस्थापक महोदय ने भी कहा कि दिव्यांग, कला साहित्य और सामाजिक सरोकार, इन 3 से जुड़े जितने भी लोग हों, चाहे वो सीखने वाले हों, चाहे काम करने वाले हों, चाहे इसमें एक मुकाम हासिल कर ले हों, हर जगह हमारी पहुंचने की पूरी प्लानिंग है। अपना परिचय। नमस्कार, मेरा नाम पायल गुजराती है और मैं एक एंटरप्रेन्योर और यहाँ मैं ओम शिवा फाउंडेशन को प्रस्तुत कर रही हूँ। तो ये ओम शिवा फाउंडेशन का क्या काम रहेगा? ओम शिवा फाउंडेशन ये स्टार्टिंग है, बच्चा अभी क्रॉल कर रहा है, जब वो तैरना सीख जाएगा तो भाग ही जाएगा, फिर तो कोई जरूरत ही नहीं। पर हाँ, ये एक स्टार्टिंग की फाउंडेशन है। इसका काम है लोगों को उनके बिजनेस के प्रति प्रोत्साहन देना, किसी गरीब बच्चे को एक सपोर्ट करना। इतना ही नहीं, अभी ओम शिवा फाउंडेशन एक शिवा श्रद्धांजलि करके एक कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें हम 16 साल से 40 साल के बच्चों को एक सिंगिंग का स्टेज, एक माध्यम दे रहे हैं, जहां पे वो जो बिल्कुल ही फ्रेशर भी है वो भी एंट्रीज कर सकते हैं, क्योंकि स्टेज एक ऐसा फेयर है बच्चों के मन में जो उन चीज को कवर नहीं कर पाता, तो स्टेज पे आना उनके लिए एक बड़ी बात हो सकती है। और यहाँ पे जो भी कंटेस्ट रहेगा वो राग बेस्ड होगा, वो फिल्मी गाने एक्सेप्टेबल है, लेकिन दैट शुड बी ऑफ राग बेस्ड। थैंक यू। अपना परिचय। नमस्कार, मैं दीक्षा श्रीवास्तव कोहिनूर मिसेस इंडिया इंटरनेशनल की विनर हूँ और काशी रत्न से सम्मानित भी, और शिवा फाउंडेशन की कमेटी मेंबर हूँ। तो आप कमेटी मेंबर हैं। अभी ये जब ये रजिस्ट्रेशन शुरू होगा तो जो प्रतिभागी हैं जो रजिस्ट्रेशन के लिए आएंगे तो उनको कब से आना होगा और किस किस प्लेटफॉर्म से वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं? ये 10 जुलाई से हमारा रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। ऑनलाइन सारे फॉर्म वगैरह आपको मिल जाएंगे, वहां पे आपको जाना होगा और वहां पे आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो जो सिंगर हैं, जो टैलेंट है छुपा है, जो डर के मारे निकल गए, उनके लिए आप क्या कहेंगे? जो डर के बारे निकल नहीं पा रहे हैं, उन्हीं लोगों के लिए तो ये प्रोग्राम रखा जा रहा है कि आप आइए, डर के आगे जीत है और आप कोशिश करिए, सफलता जरूर आपको मिलेगी। तक ये फॉर्म भरे जाएंगे और फर्स्ट 500 एंट्रीज को एक्सेप्ट किया जाएगा।
क्योंकि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर जितने हैं काम उतना ही करें जितना हम संभाल पाए। तो 500 तक हम अब कंसंट्रेट कर रहे हैं। सब्जेक्ट टू विजिबिलिटी इसको बढ़ाया भी जा सकता है और इसमें 2 लाख रुपए की राशि रखी गई है। ये राशि बढ़ाई भी जा सकती है, कम नहीं की जाएगी। और काशी की जनता से पुनः अनुरोध है कि आपका पूरा सहयोग आपके इस भाई को इस कार्यक्रम को और आगे ले जाने में बहुत। जैसा कि आपने देखा यहाँ जो भी पदाधिकारी हैं या संस्थापक हैं, इनका जो मोटिव है कि नए बच्चों को और जो पुराने लोग जो सिंगिंग करते हैं और उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा, उनके लिए प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं। 16 से 40 साल तक जो है इनका जो है एज लिमिट है और इनकी 20 तारीख से जो है रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे। उसकी जो है जो भी रजिस्ट्रेशन की जरूरतें हैं उसको ये धीरे धीरे बताएंगे, क्या एंट्री फीस है क्या है। ये 20 तारीख के बाद से लोगों के बीच में आएगा कि कब तक ये रजिस्ट्रेशन चलेगा और कब इसका मेन प्रोग्राम शुरू होगा। और इसमें जो है 2 लाख रुपए जो इन लोग ने जो प्राइज मनी रखा है। अब ये बनारस वालों की जिम्मेदारी है कि जो टैलेंट है यहाँ सिंगिंग के उसको आगे लाएं ताकि वो जो है बनारस का नाम रोशन करें, देश में विदेश में हर जगह बनारस का नाम जा सके। देखते रहिए 24 न्यूज हक की आवाज, वाराणसी से नकेदा दानिश। You are watching 24 News Haq Ki Awaaz. For more updates, like, subscribe and share. Jai Hind.